So, Vidhi, Anya students, welcome you back for the chapter of laws of motion, force, and laws of motion. I think we discussed with you what is a force, what is the unbalanced force, and what was the result when unbalanced force is applied to a body. And you have seen the body first law of motion has already been discussed with you, which was also the law of inertia students. What do you mean by law of inertia students? When I say first law is the law of inertia, what it means? Can you tell me what it means, student? When I said first law is the law of inertia, what was the meaning of that, students? What is your answer for this? We all have inertia. Every everything has inertia. What it means? It resists the change in its state. And this inertia is related to which physical quantity, students? Inertia depends on which quantity? Tell me what relationship I have told you. Inertia depends on which physical quantity, students? Do you remember? Inertia will depend on which physical quantity, students? What is that on which inertia depends? Mass? Yes or no? The bigger the mass, the more the inertia, we told you. Now coming to the next part of it, you know what we said, that if unbalanced force, students, if unbalanced force is applied, is applied, what will happen if I have an object or a body? Supposing this is a body or an object. If I applied unbalanced force, what will happen, students? The body will, and there will be a change in velocity of the body. Yes or no? What it will do? It will change the velocity of the body. It will change the velocity of the body. If, if initial velocity is something or at rest zero, it starts moving. So there is a change in velocity, students, you are saying. There is a change in velocity when a force is applied. And you know that what you are trying to say, that if u is the initial velocity, students, and v is the final velocity, then what is the change in velocity? V minus u. And what will be the rate of change of velocity? Tell me, what will be the rate of change of velocity? V minus u by, tell me, what? Rate of change of velocity, student, what we mean by that? Divided by time. So the velocity changes over a period of time. Over a period of time, student, we can calculate the rate of change of velocity. And what is acceleration, student? What do you mean by acceleration? Tell me, what is the definition of the acceleration? What is acceleration? Tell me, what is acceleration, students? Anya, what is acceleration? What is acceleration? A is equal to v minus u by t. Rate of change of velocity is called acceleration. Yes or no? So when unbalanced Yes, sir. force will act on the body, both of you are saying there will be some acceleration which will be produced in the body. There will be an acceleration produced in the body, student. The object gets an acceleration. What you are saying? Object gets an acceleration, student.
there will be acceleration which will be produced in the object. So we understand that a moving body, if a body is moving, if a body is moving, what will happen? There is a change in velocity of the body. There will be acceleration which will be the produced in the body. Student, acceleration will be produced. Now, what is interesting to note that you have seen there is something called momentum, students. Now I'm talking here about momentum. What do you mean by momentum? What is the use of momentum, students, in science, in physics? Why do we need and talk of momentum? You see that if there is a bigger, if you have a body of a bigger mass, if the mass of a body is m, students, if the mass is bigger, you will need to apply a bigger force to produce or change the state of the body. That is what we call the law of inertia. One is the mass. Second important thing, there are two things which we are talking: mass and velocity, students. Mass and velocity. If v is the velocity of the body, v is the velocity of the body, I'm talking of two things: mass and velocity, students. Supposing you have a truck, the mass of truck is very heavy. You want to move the truck, you push it, but it doesn't move. Why? Because the mass is very heavy. If you have a lighter thing like scooty, you can easily move it with your hands. With your muscular force, you can apply the muscular force and move it. If you apply your muscular force to a big truck, student, you can't move it. You can't move it. You cannot produce acceleration in that. One thing. Second important point is, students, that you have seen what is the importance of velocity. Velocity, students. If an object hits you, student, if an object is hitting you, if the object hits with a less velocity, student, less velocity, it will have very little impact on you. But if the object hits you with a very strong velocity, with a very high speed, what happens? If an object hits you at very high velocity, what will be the result of that? The impact will be, the injury will be very large to you, students. Did you experience this? Supposing I have a rubber ball. There is a rubber ball, student. Or what you have, you playing table tennis ball. These are small balls. If it hits you, not much problem. This ball hits you also, you are not hurt much, nothing. This ball hits you, nothing. But if there is a cricket ball, students, cricket ball, and if it hits you, what will happen? Tell me. Which will cause more injury? Cricket or rubber? Which ball? Which ball will cause you more injury, student, or to the batsman? A batsman is playing, and if we have cricket ball at a very high speed, it hits the player on his head. What will happen? It will cause serious injury? Yes or no? Yes, sir. You have seen they wear helmets nowadays while playing cricket. When the fast bowler comes, they use helmets. Why? Because you see, the ball has a mass m, and if speed is very high, velocity, if velocity is high, students, then what happens? The batsman will get a big hit. He can be injured. And there is a case very recently where one player has died. Do you know one batsman has died? Which country he belongs to? Which country was he? New Zealand or some country? When a fast bowler was bowling and it hit on his head and he died. That means there are two things, students, mass and velocity, which will decide how much force is required to change
or produce acceleration in a body? How much acceleration will produced in a body? There are two things now important, which you experience in your everyday life, students. That if you have, see, if you have a truck mass is very high, but if it is at rest, if the truck is at rest, student, no problem. But if truck starts moving and something comes before it, what will happen? Even if the velocity is less, the man will die. The man will die because the mass is very large. Mass is very large. And therefore, Newton defined a quantity which he called as momentum, students. He defined a quantity which is called momentum. Momentum is defined as product of mass into velocity, students. So Newton defined a quantity P which is called the momentum as mass into V. So this quantity was given by Newton. So you can write down, student, momentum is equal to mass into velocity, students. So whatever if the object has bigger momentum, the force you will experience will be much larger, student. See, if a bullet is fired at you, bullet mass is small, but velocity is very large. And what happens? A bullet can kill a person. Bullet, you know what is the bullet? देखो, we are firing a bullet from a gun. Bullet का mass small, but velocity V very high. So momentum will be m into V. Momentum will become very high. And if you are hit by a very high momentum, students, you will experience tremendous force. You will be hit by a very tremendous force, student. Therefore, we can say that momentum is related with the force which we are applying. There is some relationship between force and momentum, students. Force and momentum. So the change in momentum is proportional to the force which will be applied, or the applied force is proportional to the change in momentum. We are saying that change in momentum. Are you got my point of momentum? What is momentum, student? Why do we need a momentum? Because if a body is undergoing acceleration, student, or a body is changing its velocity, then we told you the mass is important. The law of inertia, we already told you the first law. Now we are saying when how much force impact will be there, or how much force will be experienced, will depend on change of momentum. But there is one more thing here, student. It is not only the change of momentum, it is also related with the time taken. So we are talking of rate of change of momentum now. Instead of momentum, students, I'm talking of rate of change of momentum, students. Rate of change of momentum. Rate of change of momentum. Tell me, students, what is rate of change of momentum means to you? Tell me. Tell me, what do you mean by rate of change of momentum, students? Therefore, we are saying the unbalanced force which is applied is going to be proportional to the rate of change of momentum. Not the momentum, but rate of change of momentum means what? Tell me, what is the meaning of rate of change of momentum, students? Vidhi, what do you mean by rate of change of momentum? Give me answer. What do you mean by rate of change of momentum, students? When I say rate, it means change in momentum divided by the time taken. That means change in momentum over a unit period of time, students.
change in momentum divided by the time taken, that will be called the rate of change of momentum. What we will call this? Rate of change of momentum. देखो, why do we need rate of change of momentum? Why do we need, why not only momentum but rate of change of momentum, student? So the change, the momentum of the object depends on the time rate at which momentum is changed. What we're trying to say, students, here, supposing your car battery is not working, ठीक है, कार स्टार्ट नहीं हो रही, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं इसको, ठीक है। तो आपने क्या किया, बैटरी आपकी डेड हो गई है, क्या हो गई, डेड। क्या बैटरी हुई है, डेड। स्टूडेंट्स, हुई है कभी आपकी कार की बैटरी डेड, बताओ, टेल मी, हैव यू एवर सीन? Yes, sir. बहुत सर्दी पड़ी या बहुत देर, अगर इफ यू आर नॉट ड्राइविंग ए कार फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि हमारी कार हमने 30 दिन तक स्टार्ट नहीं की लॉकडाउन में, तो वो बैटरी डाउन हो गई, बैटरी क्या हो गई, डाउन हो गई, बाहर पड़ी रही, तो नॉट यूज्ड फॉर 30 डेज। तो अब क्या करेंगे फिर, टेल मी, फिर क्या करोगे तुम बैटरी डेड होने के लिए, क्या क्या तरीका है इसको स्टार्ट करने का, बताओ तुमने क्या किया, आन्या क्या किया तुमने, बैटरी डेड हो गई थी तो धक्का लगाया था, Yes, sir. लेकिन क्या हुआ कि यू पुश इट, ठीक है, फॉर थोड़ा सा पुश किया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसने कहा कि पुश करते रहो जी, करते रहो, क्या बोला, मैकेनिक कह रहा और पुश करो, और पुश करो, दैट मीन्स यू पुश्ड फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, आपने 30 सेकंड नहीं, 2 3 4 मिनट धक्का मारा, फिर क्या हुआ, क्या आपकी कार स्टार्ट हो गई थी, टेल मी, जल्दी बोलो, ये Yes, these are sir. the practical experience in physics, you see we are doing। तो कहने का मतलब ये था स्टूडेंट्स कि if a force is applied for a longer period of time, तो क्या हुआ, तो अनबैलेंस्ड फोर्स हमने अप्लाई की थी, सडन पुश वाज गिवन, when we applied it for a longer period of time, student, the change of the momentum of the रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो हुई, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो हुई है स्टूडेंट, दैट प्लेड रोल इन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विच वाज प्रोड्यूस्ड। तो क्या हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, स्टूडेंट्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हमने ये प्रूव किया, if a continuous push over some time results in gradual acceleration of the car to the speed, that the change of momentum of the car is not only determined by magnitude of the force but also by the time during which the force is exerted। तो फोर्स तो अप्लाई हुई, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि टाइम पीरियड ऑफ द फोर्स, तो कितने टाइम के लिए आपने फोर्स अप्लाई की, स्टूडेंट्स, कितने टाइम के लिए आपने फोर्स अप्लाई की। तो हम ये कहते हैं फिर, द चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन टाइम रेट एट विच मोमेंटम इज चेंज, स्टूडेंट। तो फिर हमने एक सेकंड लॉ दिया, न्यूटन ने सेकंड लॉ जो दिया, वो क्या कह रहा है, उसकी स्टेटमेंट अब सामने आ गई, स्टूडेंट। मोमेंटम को हमने बता दिया आपको, क्या, what is the need of momentum, how it is important, student। देखो, bullet can kill you, the mass of bullet is small but the velocity of the bullet is very large, students। Similarly, if a truck is moving at a very slow speed, student, the mass of the truck is very large, it can kill you if you come before the truck। तो वेलोसिटी लेस थी, मास बहुत बड़ा था ऑब्जेक्ट का, तो उसने जो फोर्स एक्सर्ट की वो बहुत हाई थी, स्टूडेंट, बहुत ज्यादा थी। तो इसका प्रोडक्ट जो होता है मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज व्हाट वी सेड इज मोमेंटम, मोमेंटम, स्टूडेंट।
तो सेकंड लॉ जो हमारा, व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टूडेंट? It states rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of the force student. तो आपकी जो फोर्स अप्लाइड हुई है अनबैलेंस्ड, वो प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आप देख रहे हैं यहाँ पर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। force is directly proportional to students rate of change of momentum। तो force is directly proportional to rate of change of momentum। So what we are saying student, the force is directly proportional to rate of change of momentum। कोई भी चीज ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो फोर्स अप्लाई हुई है स्टूडेंट्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। किसके मोमेंटम है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो आपने नोट कर लिया होगा, समझ में आई? सेकंड लॉ ऑफ, व्हाट इज द सेकंड लॉ? Yes, sir. तो व्हाट इज मोमेंटम समझ में आया कि व्हाट इज द नीड ऑफ मोमेंटम? देखो, if it is a product of mass into velocity student, which will decide how much force will be experienced by you. So when a cricket ball hits you strongly, it will injure you, but if there is a table tennis ball, it hits you with the same speed, nothing happens to you because the mass is very small। तो इसका इम्पैक्ट बहुत कम है, किसका? स्मॉल चीज का। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास इनटू वेलोसिटी पे, मास इनटू वेलोसिटी के ऊपर। इसी को उसने बोला मोमेंटम। और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, वो जो फोर्स है अनबैलेंस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड स्टूडेंट्स, इट इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसी को बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये सिर्फ मोमेंटम के ऊपर नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर? रेट। कितने टाइम के लिए कोई फोर्स आप अप्लाई करते हो। अगर आप एक फोर्स ज्यादा टाइम के लिए अप्लाई करते हो स्टूडेंट्स, तो मोमेंटम की चेंज ज्यादा होगी। किसकी चेंज ज्यादा होगी? मोमेंटम की। नोट इसको, नोट, हैव यू नोटेड दिस स्टूडेंट? ये स्टेटमेंट नोट कर ली सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। Second law of motion Yes, states that rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force। इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, rate of change of momentum is directly proportional to change in momentum divided by the time taken divided by the time taken। इसको नोट कर लिया, मोमेंटम को आपने नोट कर लिया कि व्हाट इज मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड द मोमेंटम स्टूडेंट। और मोमेंटम हैज both direction and magnitude, therefore momentum is a vector quantity। momentum कैसी quantity है students? यहाँ पे मैं I will note down for you, let me rub a part of that students। इसको हम थोड़ा सा रब करेंगे, इसको रब करते हैं ऊपर वाले को। तो momentum is a vector quantity students, it has both direction and magnitude students। तो मोमेंटम के बारे में मैंने क्या बताया? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। A bullet can kill you student, though the mass of bullet is small but the velocity of the bullet is very high students। तो फिर मोमेंटम इसकी बहुत हाई हो जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। और जो फोर्स होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होती है स्टूडेंट। तो बहुत अनबैलेंस्ड जो फोर्स अप्लाई होगी बहुत हाई होगी। तो क्रिकेट बॉल कैन हर्ट यू बैडली, वेयर एज a table tennis ball or a rubber ball is not hurting you। तो उनकी स्पीड और मास दोनों पे डिपेंड करती है। जो मोमेंटम होती है वो प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी होती है, ये बोला हमने। अच्छा चलो, अब हमारे पास
हमने रब किया इसको स्टूडेंट्स, पेन को वापस ले लिया। अब हमने क्या बोला आपको, जो मोमेंटम है स्टूडेंट्स, मोमेंटम हमने का फार्मूला क्या लिखा मैंने स्टूडेंट, तुमने कहा सर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो ये नोट कर लीजिए, मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो फिजिक्स में व्हेन समथिंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हाट इट मीन स्टूडेंट्स, टेल मी व्हाट इज द मीनिंग दैट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या मीनिंग हुआ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? इट हैज बोथ, बताइए जल्दी से, व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी स्टूडेंट? दो बताई थी मैंने, एक स्केलर और एक वेक्टर, दोनों में डिफरेंस बताइए। Sir, vector quantity have both magnitude and direction. करेक्ट आंसर गिवन बाय विधि, बिल्कुल करेक्ट आंसर इज गिवन, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। व्हाट विल बी द एसआई यूनिट्स ऑफ मोमेंटम स्टूडेंट? एक मिनट मिलेगा, जल्दी आंसर करिए, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम? निकाल के बताइए, एसआई यूनिट मोमेंटम पेपर में आ चुका है स्टूडेंट्स, गिव द एसआई यूनिट मोमेंटम, निकालो और बताओ व्हाट इज द एसआई यूनिट मोमेंटम स्टूडेंट्स। Sir, kilogram meter per second. ठीक है, ये फार्मूला तुमने बताया, P इज इक्वल टू M इंटू V। P इज अ सिंबल ऑफ मोमेंटम, मास का एसआई यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो क्या बन गया फिर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड माइनस है ये, तो क्या बन गया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। कुछ यहाँ पे दिख रहा है गलत थोड़ा सा, किलोग्राम मीटर minus 1. So this is a SI unit of momentum student. This sometimes they ask you the units in the paper student. You should know how to calculate the units of different physical quantities. तो मोमेंटम देखो कि हमने आपको ये बोला स्टूडेंट्स कि व्हेन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड, आपने क्या अप्लाई किया, अनबैलेंस्ड फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये ऑब्जेक्ट है मेरा, इसके ऊपर मैंने अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई की, तो वेलोसिटी चेंज हो गई। क्या चेंज हो गई, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी से रिलेटेड है मोमेंटम, वेलोसिटी चेंज हो गई तो फिर पी मोमेंटम भी चेंज हो गई स्टूडेंट्स। क्या चेंज हो गई, मोमेंटम भी चेंज हो गई। यस और नो, बोलो जल्दी। अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इसके ऊपर तुमने अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई की तो वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई तो मोमेंटम भी चेंज हो गई। तो फोर्स जो किसके ऊपर है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मैं कह रहा हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इसलिए कह रहा हूँ कि कितने समय के लिए लगी वो भी इंपॉर्टेंट होता है। हाउ लॉन्ग द फोर्स इज अप्लाइड स्टूडेंट्स, हाउ लॉन्ग द फोर्स इज अप्लाइड। तो चेंज इन मोमेंटम जो है, चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स इनटू टाइम, तो इसलिए इसको बोला फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम स्टूडेंट। इसी को हमने बोला सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो जब आपने अपनी डेड कार पर स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर्स लगाई थी, स्टार्ट नहीं हुई, बट व्हेन द सेम फोर्स इज अप्लाइड फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम स्टूडेंट, तो वो स्टार्ट हो गई। समझे, एक पुश से स्टार्ट नहीं हुई थी, आपने लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए पुश किया, 2-3 मिनट 4 मिनट किया तो वो स्टार्ट हो गई। 1 सेकंड में स्टार्ट नहीं हुई, डेड बैटरी होती। तो टाइम के ऊपर भी है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आपने अप्लाई किया वो सेम था, लेकिन टाइम पीरियड ज्यादा दिया तो वो वर्क कर गया, वो वर्क कर गया। यही हमने लिखा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। दिस इज कॉल्ड द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मोमेंटम आपको समझ में आ गया स्टूडेंट, न्यूमेरिकल्स आएंगे इसके ऊपर, न्यूमेरिकल्स आएंगे।
तो जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी चीज पर स्टूडेंट, तो क्या होगा उसका रिजल्ट बताइए। आपने अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई कर दी किसी चीज के ऊपर, तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी एंड मोमेंटम भी चेंज होगी। यस और नो, जल्दी बोलो। जब अप्लाइड कर दी फोर्स तो वेलोसिटी चेंज हुई और मोमेंटम भी चेंज हो गई। यस और नो, Yes. दोनों ही चीजें चेंज हुई, क्योंकि मोमेंटम डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी। लेकिन मोमेंटम किसके ऊपर है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी के ऊपर है। कितनी चेंज आएगी, अगर बहुत बड़ा मास है तो फिर क्या करोगे, फोर्स तो अप्लाई की लेकिन मास बहुत बड़ा था, तो उसके कारण क्या हुआ, फिर बॉडी तो मूव नहीं की, ट्रक तो हिला नहीं, तुमने धक्का लगाया, लेकिन अपनी स्कूटी को धक्का लगाया तो वो आपसे मूव कर गई, क्योंकि उसका मास कम है, ट्रक का मास ज्यादा है। तो आगे चलते हैं, फिर हमें पता लग गया। तो अब देखते हैं कि मैथमेटिकल फार्मूला निकालेंगे स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल एक फार्मूला निकालेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। किसका फार्मूला, मैथमेटिकल फार्मूला बनाएंगे, मैथमेटिकल फार्मूला बनाएंगे स्टूडेंट, मैथमेटिकल फार्मूला फॉर सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हम क्या स्टडी कर रहे हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टूडेंट। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, मास उसका है m। देखिए, आई हैव एन ऑब्जेक्ट स्टूडेंट, द मास ऑफ विच इज m, इट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, और मैं कह रहा हूं इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है स्टूडेंट, u। ठीक है, u है इसकी इनिशियल वेलोसिटी। अब इसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई कर दी, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर दी, F। क्या फोर्स अप्लाई की इसके ऊपर, कांस्टेंट फोर्स। अब फोर्स अप्लाई से क्या होगा स्टूडेंट, अगर फोर्स अप्लाई कर दी मैंने, एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास बॉल है स्टूडेंट, इसका मास m है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है, इसके ऊपर हमने अप्लाई कर दी फोर्स स्टूडेंट, F अप्लाई कर दी। अब क्या हुआ, कितने टाइम के लिए अप्लाई की वो भी बता देते हैं, टाइम t के लिए, टाइम हमारा है t टाइम, t सेकंड्स के लिए, t सेकंड्स के लिए फोर्स अप्लाई कर दी स्टूडेंट इसके ऊपर। तो जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट, बताओ जल्दी, वेलोसिटी चेंज हो जाती है, बोलो होती है या नहीं होती, जल्दी बोलो। इफ अ Yes. फोर्स इज अप्लाइड व्हाट विल हैपन, वेलोसिटी विल चेंज और नॉट, जल्दी बोलो, बताओ आन्या, वेलोसिटी चेंज होगी या नहीं होगी, जल्दी बोलो। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी या डिफरेंट होगी, So different होगा. तो ये बढ़ गई, पहले u थी अब v हो गई, तो वेलोसिटी चेंज होगी। अगर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो व्हाट विल हैपन स्टूडेंट, मोमेंटम चेंज होगी या नहीं होगी, जल्दी बोलो। जब वेलोसिटी चेंज होती है स्टूडेंट्स, तो हमने अभी क्या बताया था, इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ये पहले m इन u, मास तो सेम रहेगा, मास तो सेम रहेगा, u से क्या होगी वेलोसिटी चेंज होके v, और इसकी अगर पहले मोमेंटम, मैं कह रहा हूँ मोमेंटम, अब जब वेलोसिटी u थी स्टूडेंट्स, इसकी मास m था, तो इसकी इनिशियल मोमेंटम कोई होगी। व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम स्टूडेंट, p1। बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इनिशियल मोमेंटम, जल्दी बताओ फार्मूला, विधि जल्दी बता, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इनिशियल मोमेंटम, मास m वेलोसिटी u, तो क्या बना, बताओ मोमेंटम का फार्मूला, p1 इज इक्वल टू m इंटू, जल्दी बोलो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, अब क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी v है, तो फाइनल मोमेंटम कितनी होगी, जल्दी बताओ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फाइनल मोमेंटम स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं p2, जल्दी बोलो, p2 की वैल्यू कितनी आएगी, निकालो और बताओ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फाइनल मोमेंटम स्टूडेंट, जल्दी बोलो, आने जल्दी बता, वैल्यू फाइनल मोमेंटम की कितनी आएगी,
व्हाट विल बी द फाइनल मोमेंटम स्टूडेंट्स? मुश्किल है क्या? मास तो सेम है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? जल्दी बोलो, बताओ विधि क्या बनिया, जल्दी बोलो। व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम वैल्यू? m इंटू किससे मल्टीप्लाई करूं? जल्दी बोलो, आवाज नहीं आ रही मेरे को। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फाइनल मोमेंटम स्टूडेंट्स? m इंटू v। बोलो ठीक किया मैंने, गलत किया? तो इनिशियल मोमेंटम हमारी कितनी है? m इंटू यू। फाइनल मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम कितनी आई? व्हाट इज द चेंज? व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम स्टूडेंट्स? कितनी आई बोलो? P2 माइनस P1। तो चेंज इन मोमेंटम कितनी आई? P2 माइनस P1। तो ये कितनी हो गई? mv माइनस mu। कितना हो गया स्टूडेंट्स? mv माइनस mu। तो इसमें मास तो कांस्टेंट है, तो फिर फार्मूला क्या बन गया? मास इंटू v माइनस यू। तो ये चेंज इन मोमेंटम आ गई। क्या आ गई? चेंज इन मोमेंटम। तो अप्लाइड फोर्स किसके बराबर होती है स्टूडेंट्स? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फिर अप्लाइड फोर्स कितनी हो गई? ये दिस माय चेंज इन मोमेंटम। तो वी कैन से सेकंड लॉ ने क्या बताया था? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेकंड लॉ स्टूडेंट्स? अप्लाइड फोर्स is equal to rate of change of momentum। तो कितना बन गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? एम वी माइनस यू बाई टी। F is proportional to student, it is proportional to F is proportional to mv minus u by t। टेल मी, समझ में आया? कोई गलती तो नहीं की मैंने? जल्दी बोलो, बोला सही है? इज इट करेक्ट और रॉन्ग? जल्दी बताओ। Yes, sir. तो हमने फार्मूला डिराइव कर रहे हैं स्टूडेंट, एक मैथमेटिकल फार्मूला हम डिराइव कर रहे हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन के लिए। तो ऐसे हमने डिराइव किया, और ये फोर्स जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिप्लेस कर देंगे के से स्टूडेंट, तो ये फार्मूला बन जाएगा जो यहाँ हमने लिखा है। देखो ये बन गया, और हम ये नीचे टी है, नीचे टी है स्टूडेंट्स। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v माइनस यू बाई टी क्या होता है तुम्हें पता है? एक्सेलरेशन क्या होती है? v माइनस यू बाई टी। तो फिर v माइनस यू बाई टी को एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो f की इक्वल टू k इंटू एम इंटू ए हो गया स्टूडेंट। k एक कांस्टेंट होता है, k एक कांस्टेंट होता है। तो हमारा फार्मूला हमने क्या डिराइव कर दिया स्टूडेंट? f इज इक्वल टू k मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसको क्या बोला मैंने? मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ, ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, डिराइव द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो मैंने क्या डिराइव किया स्टूडेंट्स? मैथमेटिकल फार्मूला बनाया किसका? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बोलो कोई डाउट है? डू यू हैव एनी डाउट? यहाँ पर कोई डाउट है स्टूडेंट्स? जल्दी बोलो, इज देयर एनी डाउट? आने, डू यू हैव एनी डाउट? No, sir. अब ये फार्मूला क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि डिराइव द मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इज इट डिफिकल्ट? बताओ, ये मुश्किल था, आसान था? ये हमने कल सारा डिराइव कर दिया। अब ये फार्मूले में स्टूडेंट के जो है, देखो अगर m मेरा 1 है, अगर m 1 kg है, और एक्सेलरेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है स्टूडेंट? अगर ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो फिर ये 1 हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा। F क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू एम ए। If k is 1 students, then F is equal to m। तो k की अगर वैल्यू, हम k की वैल्यू ऐसी चूज करते हैं 1, जिससे कि F is equal to मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा जाए, तो फिर हमारा फाइनल फार्मूला ये बन गया स्टूडेंट, F is equal to m इंटू। क्या बना दिया मैंने? F is equal to m इंटू। तो इस ये मैथमेटिकल फॉर्म है, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ स्टूडेंट सेकंड लॉ ऑफ मोशन।
अब बताओ व्हाट विल बी द यूनिट्स ऑफ फोर्स स्टूडेंट्स, फोर्स के यूनिट बताओ। हमने क्या डिराइव किया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नाउ आई एम सेइंग व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ द फोर्स स्टूडेंट, व्हाट आर द एसआई यूनिट्स ऑफ फोर्स। बताओ एसआई यूनिट फोर्स के निकालने हैं। तो स्टूडेंट फोर्स के एसआई यूनिट निकालो। तो फोर्स के एसआई यूनिट बताओ। Sir, Newton. न्यूटन का पूरा फॉर्म बताओ, न्यूटन किसके बराबर होता है। मास के यूनिट रखो, ए के यूनिट रखो, फिर बताओ कितने यूनिट बन रहे हैं। कैसे निकालते हो यूनिट्स को स्टूडेंट, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। ऐसा यूनिट ऑफ मास किलोग्राम स्टूडेंट। इसका क्या यूनिट एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या बन गया फिर, किलोग्राम मीटर एस माइनस टू। इसको ही बोलते हैं न्यूटन। इसको क्या बोलते हैं, एन। एन क्या होता है, न्यूटन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। इसको नोट कर लो स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लो, न्यूमेरिकल्स में इट विल हेल्प अस। देखो न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, उसके लिए ये यूनिट काम आएंगे, इसको नोट कर लो। तो हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताया, और एंड वी हैव डिराइव्ड मैथमेटिकल फार्मूला फॉर द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। F is equal to mass into acceleration स्टूडेंट। तो अप्लाइड फोर्स जो है वो मास के ऊपर होती है डिपेंड, और एक्सेलरेशन ए के ऊपर होती है। तो जितना बड़ा मास होगा स्टूडेंट, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एक्सेलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है स्टूडेंट्स। तो इसी फॉर्म को हमने लिखा था, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या लिखा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसीलिए ही हमने बताया है कि मोमेंटम जो होती है वो एक फिजिकल क्वांटिटी न्यूटन ने बनाई थी, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। क्योंकि एवरीडे लाइफ में हम एक्सपीरियंस करते हैं स्टूडेंट्स कि किस चीज़ का फोर्स जो है वो कितनी इम्पैक्ट से लगेगी कोई चीज किसी के ऊपर, तो वो मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करती है। एक बुलेट से यू कैन बी किल्ड, बुलेट का मास कम है बट वेलोसिटी बहुत हाई होती है व्हेन यू फायर इट फ्रॉम गन स्टूडेंट्स। क्रिकेट बॉल विल हर्ट ए प्लेयर, लेकिन टेबल टेनिस बॉल या रबड़ बॉल जो है वो हर्ट नहीं करेगी, क्योंकि क्रिकेट बॉल देखो हाई स्पीड पे आ रही है, उसका मास भी हाई है, तो इट विल दम उसकी जो मोमेंटम ट्रांसफर होगी बहुत ज़्यादा होगी फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो बहुत होगी तो हर्ट करेगी, बहुत ज़्यादा हर्ट करेगी, समझे। यहाँ पे नोट कर लो, फिर आगे चलता हूँ, कुछ और एग्जांपल बताते हैं आपको। यहाँ पे समझ में आई, बोलो कोई डाउट है। No, फोर्स sir. No doubt. फोर्स का यूनिट पता लग गया, एसआई Yes, यूनिट, sir. मोमेंटम का एसआई यूनिट, फार्मूला डिराइव कर दिया, के की वैल्यू 1 है ले ली हमने, ताकि फार्मूला इजी हो गया, एफ इज इक्वल टू एम। आगे चले, मिटा दूं इसको, बोलो नोट कर लिया, यू हैव नोटेड और यू आर स्टिल नोटिंग। ये क्वेश्चन पेपर में आता है स्टूडेंट, फार्मूला इंपॉर्टेंट, मैथमेटिकल फार्मूला इज इंपॉर्टेंट, यू मस्ट बी एबल टू डू इट। आगे चलते हैं। आप देखो कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन के एग्जांपल बहुत हैं स्टूडेंट्स। तुमने देखा है कि क्रिकेट की गेम ऑब्जर्व की है तुमने, हैव यू ऑब्जर्व क्रिकेट गेम, बोलो क्रिकेट का मैच देखा, बोलो देखा। Yes, sir. अब वो जब बहुत तेज शॉट मारते हैं स्टूडेंट्स, बैट्समैन हिट्स, तो कैच कैसे करता है वो, कैसे कैच करता प्लेयर। देखो अगर
बॉल बहुत हाई स्पीड से आ रही है और एकदम से आपने उसको कैच कर लिया, तो क्या होगा? आपका हाथ टूट जाएगा। क्या होगा? हाथ पे लगेगा चोट, बहुत इंजरी हो जाएगी हैंड पे। मतलब क्रिकेट की बॉल जो आ रही थी स्टूडेंट, उसके पास थी एक फोर्स, ठीक है, वो हाई वेलोसिटी से आ रही थी, बहुत तेज शॉट थी, वेलोसिटी बहुत हाई थी स्टूडेंट्स। क्या थी? हाई वेलोसिटी से आ रही थी। तो हाई वेलोसिटी से आ रही थी, आपने कैच कर लिया, ठीक है, एकदम 1 मिनट में आपने कैच कर लिया। तो यूर क्या होगा कि अगर आपने इमीडिएटली कैच कर लिया स्टूडेंट बॉल को, तो आपके हाथ पे चोट लग जाएगी। क्या होगा? यू विल गेट हर्ट। तो प्लेयर्स फिर क्या करते हैं? क्या करते हैं वो? क्या करते हैं? तुमने देखा था बॉल कैच करते हुए वो? तुम्हारे को भाई हाई स्पीड से बॉल आती, तुम अपना हाथ पीछे पीछे ले जाते हो ना, पीछे कर करके फिर बॉल को कैच करते हो। बोलो यस और नो। तो हाई वेलोसिटी अगर मैंने, देखो, हाई वेलोसिटी आ रही थी स्टूडेंट वी, और जब बॉल रुकेगी वो रेस्ट पर आ जाएगी, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी वी, इसकी हाई वेलोसिटी थी यू, चलो इसको यू कह देता हूँ, यू इस हाई वेलोसिटी थी, और ये पे फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी जब आप कैच करोगे। बोलो यस और नो। बताओ, ये हाई है, कैच की तो वेलोसिटी क्या हो गई बॉल की? 0। यस और नो, जल्दी बताओ। रेस्ट पे आ गई बॉल। अगर आपने इसका टाइम शॉर्ट टाइम ही दिया कैच में, क्या किया? शॉर्ट टाइम में ये किया स्टूडेंट्स, सडनली एकदम कैच कर ली, तो क्या होगा? इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा। क्या होगा? इट विल हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन योर हैंड्स। तो फील्डर क्या करता है? वो इंक्रीजेज द टाइम, इंक्रीजेज द टाइम स्टूडेंट, ठीक है, ये टाइम वो इंक्रीज करता है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का टाइम इंक्रीज कर देता है, ये वाला टाइम इंक्रीज कर देता है स्टूडेंट। तो इससे क्या होता है? जब टाइम इंक्रीज कर देता है स्टूडेंट, तो एक्सेलरेशन बॉल की डिक्रीज होती है। क्या होती है? एक्सेलरेशन बॉल की डिक्रीज हो जाती है स्टूडेंट। तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है फिर? उसका इम्पैक्ट लो होता है। तो हाई स्पीड की जो बॉल आ रही थी स्टूडेंट, जो फास्ट हाई स्पीड बॉल आ रही थी, उसको हमने ज्यादा समय दिया कैच करने के लिए, तो क्या हुआ? उसका इम्पैक्ट कम हो गया, रिड्यूस हो गया स्टूडेंट। अगर सडनली स्टॉप कर लिया तो क्या होगा? शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में मैंने कैच कर लिया, तो देयर विल बी इंजरी इन माय। बात समझ में आई? बताओ, ये Yes, सही है या sir. गलत है? ऐसे ही कैच करते हो? बोलो। ये तो सीधी कैच करेगा, इंजर्ड हो जाएगा। ये जब बॉल आ रही है तो ये ऐसे ले गया बॉल को, इतने ज्यादा टाइम इंक्रीज कर दिया, टाइम इंक्रीज कर दिया स्टूडेंट। जो बॉल की वेलोसिटी थी हाई स्पीड से 0 करने में, उसका टाइम बढ़ा दिया है, टाइम इंक्रीज कर दिया है। तो एसेलेशन बॉल की डिक्रीज हो गई है, एसेलेशन बॉल की डिक्रीज हो गई है, टाइम को बढ़ा दिया है। क्योंकि एसेलरेशन क्या होती है स्टूडेंट? v माइनस यू बाई टी। तो टाइम को बढ़ा दिया है, टाइम बढ़ गया तो ए क्या हो गया? कम हो गया या ज्यादा हो गया? जल्दी बताओ, बोलो। टाइम इंक्रीज कर दिया तो ए को ए क्या होगा? मोर और लेस? जल्दी बोलो, दिख रहा फार्मूला? if I increase the time t students, then this will decrease, inversely proportional है, inversely proportional to time. So if I increase the time, the acceleration will decrease, and therefore the impact of the ball will be less on our hand student, हैंड स्टूडेंट। ये भी एप्लीकेशन है हमारी सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, देख रहे हैं? तो बहुत सारी जगह पर ये यूज होती है। तो फोर्स कम अप्लाई करनी पड़ेगी, एक्सेलरेशन कम हो गई स्टूडेंट, तो फोर्स कितनी हो गई? m इंटू ए। तो एक्सेलरेशन कम है तो फोर्स भी कम हो गई स्टूडेंट, लेस फोर्स हैज टू बी अप्लाइड, has to be applied students to catch the ball.
टू कैच फास्ट बॉल। बात समझ में आई? यस और नो? जल्दी बताओ। व्हाट डू यू थिंक विधि, इज इट राइट आंसर? समझ में आया तो बोला हो यस, नहीं आया तो बोलो नो। Yes, sir. तो जो एक्सेलरेशन थी वो टाइम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट्स। तो मोर टाइम अगर दूंगा मैं तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगी तो सेकंड लॉ क्या कहता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स जो मुझे अप्लाई करनी पड़ेगी हाई वेलोसिटी से बॉल को जीरो वेलोसिटी में लाने के लिए स्टूडेंट्स, वो भी कम हो जाएगी। तो कम फोर्स लगानी पड़ेगी। तो फिर क्या होगा? इतनी कम कि कुछ पता नहीं लगेगा मैंने कैच किया बॉल। तो देखा प्लेयर्स कितनी आसानी से कैच कर लेते हैं। आपने देखा बहुत हाई स्पीड की कैच को प्लेयर्स को पकड़ते हुए देखा कभी स्लो मोशन? बोलो आईपीएल में देखा है? टेल मी। अब जब मैच होगा तो ट्राई टू सी दैट, यू विल सी दैट रिजल्ट, सेम थिंग आप दिखेगी वहां पर। जो प्लेयर्स होते हैं उनके पास टेक्निक्स होती हैं स्टूडेंट, बहुत एक्सपीरियंस होता है कैच करने। इफ यू आर गोइंग टू कैच यू विल बी हर्ट। मैं अगर मैं खड़ा कर दोगे तो मेरा तो हाथ टूट जाएगा। लेकिन प्लेयर्स के पास बहुत एक्सपीरियंस होता है, ये वो फिजिक्स का लॉ अप्लाई करते हैं। ये अप्लाई करते हैं, वो क्या करते हैं एक्सेलरेशन को कम कर देते हैं, टाइम को बढ़ा देते हैं। कैच की बॉल को कैच का टाइम बढ़ जाता है स्टूडेंट। जैसे ही टाइम पीरियड बढ़ेगा, टाइम बढ़ गया कैच करने का, एक्सेलरेशन कम हो जाएगी तो फोर्स कम अप्लाई करनी पड़ेगी स्टूडेंट। एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। समझ में आ गई? अब जो एथलीट्स होते हैं स्टूडेंट, तुमने देखा वो हाई जंप जब करते हैं स्टूडेंट, एक डंडे में से जंप करते हैं, वो कौन सी गेम होती है जल्दी बताओ? वो होता है ना एक, आपको हाइट में से कूदना है, ठीक है? हाई जंप क्या बोलते हैं? हाई जंप देखी है तुमने स्टूडेंट्स? बोलो, हैव यू सीन हाई जंप? बताओ, हाई जंप देखी है? Yes, sir. वो क्या करता है? वो कौन है बहुत अच्छा करती है वो, एक मैंने देखी थी इंटरनेशनल प्लेयर। यहाँ पर वो लगा होता है कैसे, ये डंडे की हाइट बढ़ाते रहते हैं, वो इसकी हाइट बढ़ाते रहते हैं, और यहाँ से प्लेयर आता है वो इसको इसके ऊपर जंप करता है, ठीक है? यहाँ से जंप किया उसने तो इसकी हाइट बढ़ाते रहते हैं वो जंप। लेकिन देखो व्हेन इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड जो होता है वो प्लेन नहीं होता, उसके नीचे क्या लगा रखा होता है उन्होंने देखा तुमने? क्या होता है वहां पे? सैंड बेड या कशन बेड होता है। नीचे क्या होता है? सैंड और किस टाइप का बेड होता है? कशन बेड। उसका क्या होता है स्टूडेंट? ये वाला जो बैग हम नीचे रखते हैं, जब प्लेयर नीचे गिरता है स्टूडेंट, अगर वो फ्लैट ग्राउंड पे गिरेगा तो बहुत चोट लगेगी। क्यों? हाई फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन उसका जो अगर मैं टाइम पीरियड बढ़ा दूं स्टूडेंट, कैसे? वो दबने वाला गद्दा जो होता है, जो दब जाता है, क्या होता है? सैंड बैग जैसे होता है, ऐसी चीज को जिसके ऊपर गिरोगे तो दब जाएगा। तो उससे क्या होगा कि टाइम आपका बढ़ गया, ठीक है? यू आर कमिंग विद हाई वेलोसिटी एंड यू आर गोइंग टू जीरो वेलोसिटी स्टूडेंट। हाई वेलोसिटी से जीरो वेलोसिटी जा रहे हो, तो आपका जो टाइम पीरियड बढ़ गया स्टूडेंट। तो टाइम पीरियड अगर बढ़ गया तो एक्सेलरेशन कम हो गई। एक्सेलरेशन अगर कम हो गई स्टूडेंट, एक्सेलरेशन अभी कम होगी तो उसका रिजल्ट क्या हुआ बताओ? अगर एक्सेलरेशन कम हो गई तो फोर्स जो आपको अप्लाई करनी पड़ी, जो फोर्स आपने एक्सपीरियंस की स्टूडेंट, वो कम हो गई। तो अगर फोर्स कम हो गई, लेस फोर्स आपको अप्लाई करनी पड़ी स्टूडेंट्स, तो आपके ऊपर इम्पैक्ट कम होगा, ठीक है? तो एथलीट्स फॉल का टाइम इंक्रीज कर दिया जाता है आफ्टर मेकिंग ए जंप। दिस डिक्रीजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है स्टूडेंट? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमने क्या बताया था? P2 माइनस P1 बाई टी। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। टाइम बढ़ जाता है, टाइम बढ़ जाता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम हो जाता है स्टूडेंट। और इसी को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को, दिस इज व्हाट योर सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फिर फोर्स कम लगती है, इसलिए प्लेयर सेफ रहता है। बात सही है या गलत है? जल्दी बोलो, डू यू Yes, एग्री? sir. इसी तरह तुमने देखा है वो कराटे का जो प्लेयर होता है स्टूडेंट, उसके आगे तुमने बर्फ की वो रख दी, एक
ट्रे, वो सारी एक हाथ से फोर्स मार के बर्फ को तोड़ देता है। क्या करता है? सारी आइस को तोड़ देता स्टूडेंट्स। कैसे? सिंगल ब्लो से। तो क्या करेगा? टाइम पीरियड बढ़ा देगा, अपना टाइम पीरियड बढ़ा देगा स्टूडेंट्स। अगर एकदम खटक से मारता है तो देखो टाइम लेस है, तो टाइम लेस है तो क्या होगा? फोर्स ज्यादा हो जाएगी। अगर टाइम लेस कर दूंगा तो फोर्स बहुत ज्यादा अप्लाई हो जाएगी। तो वो एक फ्लैश में मारता है हाथ, सारी बर्फ टूट जाती है। उसका टाइम वो शॉर्ट कर देता है बहुत ज्यादा, बहुत ही झटका मारता है एक। उससे क्या होता है कि फोर्स बहुत हाई अप्लाई हो जाती है और सारी बर्फ टूट जाती है, 2 पीस में हो जाती है। ये जो कराटे के प्लेयर्स होते हैं स्टूडेंट, इसी तरह वो अपनी फोर्स बढ़ाते हैं, इसी तरह अपनी फोर्स को इंक्रीज करते हैं कराटे प्लेयर्स। तो बता, कराटे जो खेलते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत तेजी से मारता है वो, फोर्स बहुत हाई होती है उनके पास। किसके पास? जो कराटे खेलते हैं स्टूडेंट्स, कराटे प्लेयर। बोलो सही है गलत है? तो शॉर्ट कर देता है वो टाइम को। टाइम को शॉर्ट कर दूंगा तो फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगी। जैसे ही किसी को हिट करूंगा शॉर्ट टाइम में तो उसके ऊपर बहुत बड़ी फोर्स अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह से वो कराटे के जो प्लेयर्स होते हैं वो करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारा लेक्चर एंड हुआ। वी हैव टोल्ड यू अबाउट द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वी हैव डिराइव्ड द फार्मूला, mathematical formula for second law of motion, and we have given you examples of the second law of motion, also about the momentum and rate of change of momentum, and how these everyday examples of these, so many examples have been given. Then we'll meet you in our next class, students. Okay, do you have any doubts, students? Do you have any doubts? Boliye. Is there any doubt in your mind, students? Yes or no? No, sir. No, sir. Okay, bye bye. Keep sharing our videos with your friends, everyone, so that more and more students can defeat corona pandemic, as online classes will continue, because it is not possible, I think, to go to the school. Do you think you want to go to school? Tell me. Possible? बोलो, पॉसिबल है क्या अभी? No, sir. तो अभी तो बहुत सारे केसेस आ रहे हैं दिल्ली में, तो फिर हमें ऑनलाइन ही कराना है। तो हमारी वीडियोस को आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ, तो वो ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन टीचिंग करें, अभी ऑनलाइन ही लर्निंग करें टिल वी फाइंड ए वैक्सीन और ए ड्रग फॉर दिस। आप क्या समझ रहे हो, कोई ड्रग बन रही है या वैक्सीन आ जाएगी जल्दी के बहुत टाइम लगेगा? कुछ चांस तो कम दिख रहा, समझ नहीं आया अभी तो, मुझे कुछ दिखा नहीं। नोबडी हैज क्लेम्ड। अब तो टेस्ट बंद हो गए, पता नहीं कह रहे जो हो रहे थे वैक्सीन का, किसने बंद रोक लगा दी है उसके वैक्सीन के ऊपर हमारे कंट्री के? क्या किया? वैक्सीन का टेस्ट किस कंट्री में बंद हुआ? यूके में, किसके अंदर बता रहे थे? तो अभी तो पता नहीं व्हाट विल हैपन। अभी कोई इसका इफेक्टिव वैक्सीन तो आया नहीं, ड्रग भी नहीं है, खुद ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं लोग, तो क्या करें? नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं कि इंडिया में बहुत ज्यादा हो रही है। कितने? 96 से ऊपर हुए हैं, 96,000 से ऊपर आज एक दिन में। तो ठीक है फिर, ओके देन वी विल मीट यू इन अवर नेक्स्ट क्लास, स्टूडेंट्स। ओके, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके।